हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है हम बेसिकली कौन से स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वो हम सारी चीज़ें जो है हम बात करेंगे। इस वीडियोस में कोई भी हम रिकमेंडेशन बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अशोक बिल्डकॉन हैज़ अ मैसिव 16,000 करोड़ ऑर्डर बुक बिल्डिंग इंडियाज रोड एंड पावर लाइंस। इज दिस अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर? सो आज हम अशोक बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। अशोक बिटकॉइन इज अ टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी known for India's first 8-lane bridge, but recent tax issues have raised some concern. In 15 minutes, I am going to show why the stock could be a gem, starting with what they do and their order book. Ashok Bitcoin Infrastructure run roads and sells concrete like a one-stop shop for Indian growth. कंस्ट्रक्शन में जो है देयर रेवेन्यू इज समवेयर अराउंड 63% ऑफ रेवेन्यू। दे बिल्ड हाईवेज ओवर 14,000 किलोमीटर, railways line, power lines for 30,000 plus villages and buildings. This is called engineering, procurement and construction, EPC, meaning they handle the whole project from design to completion. Build, operate, transfer roads, which contribute 28% of their revenue. They build road, collect tolls or government payments, then hand them over. Some are hybrid annuity model or HAM, where the government pays 40% upfront and the rest over time, likely steady rent. They earned 968 crore from these in financial year 2025 till 9th of month. Concrete and smart cities, which contribute 9% of their revenue. They sell ready mix concrete for construction and work on modern city projects since 2016. Now you know what they do. Let's see their product pipeline. Ashok Bilkon book in their list of confirmed project like guaranteed future income. They have 16,476 crores order book till Q3 financial year 2025 plus a new 1,387 crores of deal in June 2025. Mostly road 58%, power line 24% with 62% from state government spreading the risk. This ensure work for years, though land delays could slow the projects. Why the Ashokas getting these projects? Let's connect the industry. Indian infrastructure sector is growing very fast and Ashoka's is the middle of it. The government spending 2.8 lakh crores on roads and 11.8 lakh crores overall. Programs like Bharatmala for highways and smart cities fuel the demand. This sector grows 6 to 8% a year, stable even in the market dips. They work with big clients like National Highways Authorities of India. What's the Ashoka's growth plan? Ashoka's expected to 12 to 14,000 crores new order on financial year 2026. They told assets for 8,042 crores to cut debt and fund project like the smart cities. They spent 1526 crores to control more road projects boosting toll incomes. They built India's first 8-lane bridge and Bandekhand Expressway setting the speed record. Growth looks solid, but what are the risks? So 18,000 crore GST notice for alleged fake tax credits dropped the stock 13% in June 2025. They owe 6,847 crore through its shrinking. Land delays and rivals like the Larsen and Tobo could hurt. The stock down 31% in 2025. Transition. Let's look at the number and charts. So we will jump to the fundamental analysis. So in fundamental analysis, it has a market capitalization of 5,790 crore. So their current price is 206 and the intrinsic value is 943. तो अगर आप देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू से जो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे जो है ये हमें अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है 7,401 करोड़ का है, जिसमें से डेट टू इक्विटी का परसेंटेज 0.51 है और इनके पास में फ्री कैश फ्लो जो है 1,573 करोड़ का है। ऑल टाइम हाई से इट्स ऑलमोस्ट 35% डाउन। आरओसीई बेहतरीन 39%, आरओई बेहतरीन 55%। सीएफओ बाय पैट जो है वो भी 106% का है, मतलब जितना ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं उतना ही इनके पास में ये कैश में भी कन्वर्ट हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। पाइट्रिस्टिक स्कोर 8 है आउट ऑफ 9, इट इज एक्सीलेंट। पैग रेशियो 0.06 है, एक के नीचे है, दैट इज अगेन एक्सीलेंट। इसके बाद में इसका जो पीई जो है वो 3.42 का है, काफी कम पीई में जो है ये हमें कम पीई के वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसका रीजन
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें जो है कुछ नोटिस आया हुआ है जीएसटी का, जिसके कारण से जो है इनका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 35% जो है हमें डाउन पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर मैं इसके पीएस का जो पी देखूं तो वो 23 है, तो इसका 3.4 है और इंडस्ट्री का पी 23 है, तो इट्स अ ह्यूज वैल्यूएशन गैप। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.48 है, वहीं पर इंडस्ट्री का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.84 है, जो कि काफी सस्ते लेवल पे जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अब मैं इसकी प्राइस की मूवमेंट करूं तो ये द लास्ट 10 इयर्स का चार्ट है, हमें जो है ऑलमोस्ट 2018 का जो इसने जो हाई बनाया था नियर टू दैट हमें जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है, वहां से थोड़ा सा ऊपर है बट उसके आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। पीई रेशियो को अगर हम 10 साल 5 साल या 3 साल में भी कंपेयर करें तो वो जो है हमें अपने मीडियन से जो कम में देखने को मिल रहा है। लाइक वाइज प्राइस टू बुक अगर मैं 3 साल 5 साल और 10 साल में देखूं तो अगेन मीडियन से जो है वो काफी कम प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने रिड्यूस करा अपने डेट को, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 61.4% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, कंपनी का अच्छा आरओई और आरओसी है। वहीं पर ही जो है कॉन्स कंपनी के हैं कि कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है बट कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है, टैक्स लो लग रहे हैं और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई। अब यहाँ पे एक पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं एल&टी और इन सब में, तो यहाँ पे जो अशोक बिटकॉइन जो है इसमें एचएनआई ने जो है यहाँ पे कुछ मूवमेंट जो है वो करी हुई है, माइनस नेगेटिव में है, ये जो है ये नेगेटिव काउंट होगा। वहीं पर करंट मार्केट टू बुक वैल्यू अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये दिस इज वन ऑफ द चीप राइट नाउ 1.48। सेल्स अगर हम देखें तो लास्ट 3 साल का CAGR में दे आर वन ऑफ अ ग्रेट परफॉर्मर 18.71। वहीं पर ही आरओसी अगर देखें तो जितने भी इनके पीयर्स हैं उसमें जो है दे आर द बेस्ट, दे कैरी अ ROCE ऑफ 31.65%, वेयर एज द सेकंड नंबर इज NBCC who has a ROCE of 30.80। वहीं पर ही ROE जो है बेस्ट इन द इंडस्ट्री, दे आर हैविंग 37.63 वेयर एज नो वन इज क्लोज टू द कॉम्पिटिटर। एक NBCC का जो है वो 24 के आसपास में ROE है। पेग रेशियो जो है दे आर अगेन वन ऑफ द टॉप इन द पेग रेशियो ऑल्सो, काफी अच्छा पेग रेशियो बनाया हुआ। ऑल टाइम हाई से जो है हमें 35% जो है वो डाउन मिल रहा है। एक साल का जो है अगर हम रिटर्न देखें तो वो -7.83 है, मींस लास्ट अगर 365 डेज का अगर मैं रिटर्न देखूं तो वो हमें माइनस को देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है लोएस्ट 52 वीक हाई 52 वीक लो से जो है हमें 30% के ऊपर जो है हमें ये अभी ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है लास्ट जो रिजल्ट आया है मार्च 2025 में वो 2694 का है। लाइक वाइज मार्च 2024 में जो है ये 3052 करोड़ का होता था। यहाँ पे जो है हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है लास्ट के 2 क्वार्टर में, दिसंबर 2024 में 10% का और मार्च 2025 में जो है 11.7 मतलब 11.5-12% के आसपास का डी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो लाइक वाइज जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंप्रूव देखने को मिल रहा है 452 का, जबकि लास्ट में 254 का था। इसका रीजन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि टैक्स जो है वो 39 के बदले जो है 6% का जो है इस बार दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हैं तो 417 करोड़ का जो प्रॉफिट जो होता था वो 481 करोड़ का आया हुआ है। इसका रीजन ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है जो 21% का जो होता था वो बढ़ के जो है वो 29% के आसपास में आ गया, जो कि अच्छी बात है। सेल्स में जो है अगर हम कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो एक अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर मैं लास्ट 4 साल में बात करूं तो 20, 35, 20 और 2.43%, तो लास्ट ईयर से इस ईयर में ग्रोथ कम है, लेकिन उससे पहले जो है काफी अच्छी ग्रोथ होती थी। इसके बाद में वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो लास्ट अगर मैं 4 साल की बात करूं तो 771 करोड़, 294 करोड़, 521 करोड़ और इस बार जो है हाईएस्ट एवर 1734 करोड़ का रेवेन्यू इसने पोस्ट करा है। अब इसमें जो है प्रॉफिट बिफोर अगर मैं टैक्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 900, 600, 870 और 1500 करोड़ का है। गैप तो खैर अभी भी इसमें काफ़ी है इसका, लेकिन इसमें क्या है कि इन्होंने जो है टैक्स भी जो है इस बार जो है -12 मतलब टैक्स जो है इन्होंने काफ़ी कम दिए हुए हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एज गुड एज सेम ही है, 30, 24, 23 एंड 29% का है। तो यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन हमें नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो लगभग जो है वो सेम ही रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं दिखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अदर इनकम में भी जो है हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। 485 करोड़ का था, इवन कि इस बार जो है 170 करोड़ का जो अदर इनकम जो है उसमें जो है कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है। ये जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी जो है इसका जो है P&L स्टेटमेंट है। इसका EPS जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, 9, 27, 10, 17 और 60 के आसपास में अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्राइस का अगर आप देखोगे तो 10 साल में जो इसका जो प्राइस का जो ग्रोथ जो थी वो 16% की थी, वहीं पर स्टॉक की जो मूवमेंट जो है वो मात्र 10 साल में 6% की हुई है। तो लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन गैप दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन 5 साल और 3 साल में जो है यहाँ पे फिर प्राइस ने ज़्यादा मूवमेंट करी हुई है। लेकिन 12 ट्रेलिंग की मंथ की बात करूँ तो 2% का जो सेल्स ग्रोथ जो करी है, और लेकिन जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो -8% की हो गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है वैल्यूएशन जो है हमें कंफर्ट दे रहा है।
और ये आने वाले 3 से 5 साल में अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये काफ़ी बेहतरीन डील हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25, 40, 38 एंड 44% की है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बैलेंस शीट जो है ये काफ़ी अच्छा, इनका रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली इनका बढ़ते जा रहा है। बोरोइंग जो है इनकी जो है कुछ लेवल तक जो है वो घटी है, जो कि 6,000 की होती थी, फिर ये 3,600 तक गई थी, फिर उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई 5,500, अभी जो है वो घट के जो है वो 2,000 करोड़ के आसपास में जो है इनकी बोरोइंग है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं पर ही जो है CWI की बात करूँ तो ये कंटिन्यूसली जो है अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली तो नहीं है, बट दैट्स अ गुड, मतलब ठीक है कि फेयरली वैल्यूड है। तो इसके बाद में जो है आप जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने जो है वो ऑलरेडी देख लिया कि CFO बाय पैट जो है ये अच्छा कर रहे हैं, कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर रहे हैं, इसमें कोई भी जो है दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं लग रही है। रेशियोज वगैरह देख लेते हैं तो डेटर डेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इन्वेंट्री डेज जो है वो कम हुई हैं, डेज पेबल जो है वो कम हुआ है, और जो कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है वो थोड़ा से टाइम जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। ROC जो है वो 40% के आसपास है, वो मतलब कि पहले से काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंप्रूव्ड हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं, 8 से 56 डेज हो गए हैं। शेयर पैटर्न जो है वो जो 54.48% का 2022 में रहता था वो अभी तक जो है वो सेम है। FII की जो होल्डिंग जो 2% के आसपास में रहती थी वो बढ़ के जो है 7-8 7.5% के आसपास में जो है अभी चल रही है। लास्ट जो है 8.5% के आसपास में हो गई थी, अभी 7.48 है। DII की जो पोजीशन जो है 19% के आसपास में जो रहती थी वो जो है वो घट के 17% गई, उसके बाद में बढ़ के जो है फिर से 19% आ गई है, और अभी जो है फिर घट के जो है 14.93 के आसपास में जो है लेटेस्ट दिखा रहा है। वहीं पर ही जो है पब्लिक की जो होल्डिंग जो है वो 23% के आसपास में रहती थी जून 2022 में, वो जो है वो घटने के बाद में 22, 21, 20 के आसपास में भी गई है, 18 के आसपास में गया है, 18 के बाद में फिर अभी बढ़ के जो है 19, 21, और अभी जो है वो लेटेस्ट 23% के आसपास में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है इसके जो है एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग्स एंड कॉन कॉल को जो है आप डेफिनेटली इसको गो थ्रू करिएगा, ये जो है कन्विक्शन बढ़ाने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अब जो है हम जो है इसकी कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखो दोस्तों, ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा हुआ है, और ये मई 2018 के जो इसने जो टॉप बनाया था, और यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में दिया था, और ये ब्रेकआउट देने के बाद में जो है ये फिर से जो है रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के जो है यहाँ पे फिर इसने अप की तरफ मूवमेंट चालू करी है, फिर यहाँ से फिर डाउन नीचे आ चुका है। तो अभी जो है ये जो हमने जो लाइन खींची इसके आसपास में ही जो है ये हमें ट्रेड करने को देखने को मिल रहा है। तो अब जो है अगर देखा जाए तो ये 2018 के पास में है, तो 2018 में जो हम एक बार देख लेते हैं, तो 2018 में ये 3,600 करोड़ का बिजनेस करते थे, आज के टाइम में 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट जो था इसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो माइनस में 119 के आसपास में रहता था, अभी जो है नेट प्रॉफिट जो है वो 1734 करोड़ के आसपास में है। तो आप ये देखो कि करीबन करीबन 3 गुना जो है वो सेल्स इंक्रीज हुआ है, और जो नेगेटिव जो बिजनेस जो था वो पॉजिटिव नेट प्रॉफिट में जो है करीबन करीबन 1700 करोड़ के आसपास का जो है वो पॉजिटिव बिजनेस अभी लेकर आ चुके हैं ये। तो काफी टर्न अराउंड हुआ है कंपनी में। हाँ, अभी कुछ जो है GST का इनका कुछ जो है प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली चल रहा है, जिसके कारण में जो है हमें ये 35% जो है वो ऑल टाइम हाई से डाउन अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है इसने ये इस लेवल पे जब ये गया था, यहाँ से यहाँ पे आके ये जो है इसने देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, उसका जो टारगेट जो बनता था वो यहाँ पे बनता था 362 के आसपास में। तो ये बिना अपने टारगेट को अचीव करे ही जो है ये हमें फिर से रिट्रेसमेंट लेवल के पास में जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं आज के टाइम में देखूं कि जो आज की जो वैल्यू है वहां से अगर ये अपना जो इसका जो टारगेट जो बनता है अगर वो हम देखें तो वो करीबन करीबन जो है वो 71% के आसपास में है। तो मेरे हिसाब से ये जो 71% की जो इसमें जो मूवमेंट दिख रही है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाना चाहिए इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगेगा ये अचीव होने में। तो आने वाले टाइम में जो है ये जो आपको जो दिख रहा है ये यहाँ पे जो है एक अच्छी मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली देने के चांसेस रखती है। ठीक है, तो अब जो है हमने इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों को जो है हमने इसको कंक्लूड कर लिया है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन लग रही है हमें कंपनी, अच्छा इसका जो है एक ऑर्डर वैल्यू है, इसका इनकम जो है उसकी जो ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है। जैसे कि इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके से बूम चल रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कैपेक्स कर रही है, उसी हिसाब से जो है अशोक बिल्डकॉन को जो है डेफिनेटली इसका जो है वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। GST इशू को डेफिनेटली आप क्लोजली वॉच आउट करिए, देखिए कि आने वाले टाइम में जो है ये किस तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, और अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, दिस इज अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम माई साइड। You do consult your research advisor and then only you put your money. So please don't forget to like my channel, subscribe, share and comments whatever you wants to रिसर्च ऑन। कोई अगर आपको स्टॉक के बारे में अगर जो है कोई रिसर्च करनी है, कोई डिस्कशन वगैरह करना है तो डेफिनेटली जो है आप वहाँ पे डालिएगा, मैं उसको डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगा। आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उसके मैं आंसर करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद
a new stock for a long term wealth creation. See you, take care, see you in the next video. This side signing off, Manthapa.